Good morning, YouTube. What is up? It is around, what time is it right now? It's around 8:42 in the morning, and all I have been doing for the last 1.5-2 weeks is researching roots upon roots upon roots. So ever since I started this channel, I've always wondered कि राइड तो अपन ने बहुत किया है, पर अपन राइड करते टाइम अगर शूट करके उसको व्लॉग करके डाल दे तो, एंड मेरे को यूट्यूब के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज नॉट a very big consumer of YouTube. Till today also I'm actually not a very big consumer of YouTube. I watch very particular channels. एकदम filter out करके content देखता हूँ मैं. Usually I don't consume a lot of content. I consume a lot of movies and shows, but online content I don't consume much. Anyway, so upon doing a lot of this research, I came across Uttarakhand and why the fuck did I say Uttarakhand right now only? मतलब ज़रूरत क्या थी बोलने की? दिमाग में स्क्रिप्ट लेके बैठा था मैं. जब मैं स्क्रिप्ट के बिना बात करता हूँ ना, तो मैं ज़्यादा बेटर बात कर पाता हूँ, क्योंकि फिर फ्लो में निकल जाता है जो मेरे अंदर, दिल के अंदर और दिमाग के अंदर होता है ना, वो फ्लो में निकल जाता है. मैं स्क्रिप्ट लेके बात करता हूँ ना, तो ये फंबल हो जाता है, फकअप हो जाता है. अब मैं उत्तराखंड बोलने नहीं वाला था, अब मैं बोल दिया हूँ. ठीक है, मैं नॉर्थ जा रहा हूँ. So I started YouTube and I started riding and I started motovlogging, and at first it was very difficult to ride and come up with things and keep talking continuously, whatever, XYZ. So I said I'll not do extremely long rides, I'll do chota mota rides first. I'll go आजू बाजू में and I'll test the waters out first. तो सबसे पहले मैंने एज यूजुअल वही चालू किया. महाराष्ट्र राइड करने लगा, मालसेज राइड किया, अलीबाग राइड किया, कोंकण बेल्ट राइड किया, एंड मैक्स टू मैक्स आई वेंट टू गोवा. Then one day a friend was getting married, and the friend was getting married in Bhopal, Madhya Pradesh. So I did that solo. When I did that solo, the point of it was not riding solo to Bhopal. The point of it was vlogging while riding solo to Bhopal. For me, it was a very new experience to do around 850 kilometers non-stop while making a video, and I thoroughly enjoyed it. So then I planned, and today we have finally reached the time where I am leaving for North India in a few days. मतलब you're watching this today, मतलब by the ये परसों तक मैं निकल चुका हूँगा. मैं यहाँ पे मुंबई में नहीं रहूँगा परसों. So I'm going to be doing this entire expedition solo, and it's going to be a cross country ride. But because I don't have the time or the budget, the funds to do an entire cross country together, what I'm going to be doing is I'm going to be riding north this time. Then I'm going to come back, and most probably in winters I'm going to be riding down towards the south of India. Now if you follow me on Instagram, you know that I'm very much interested in a lot of soul searching, and I try to go as much as within as possible. A lot of times it's not possible, but I try my best. Okay, I'm like a wannabe Nirvana-ish type person, if that makes any sense. ये ride में थोड़ा सा, it's going to be more of a selfish ride than it's going to be of a YouTube ride. But because I've fallen in love with this king GoPro of mine, and this king editing software of mine, and this king filming a ride movie, so I'm going to be taking you along this time, and I hope you have fun. It's going to be a lot of soul searching on this ride. There's going to be a lot of silence on this ride. There's going to be a lot of traveling within more than traveling externally on this ride. I hope to meet a part of myself that I have never met before, or I hope to meet a part of myself that I knew बचपन में, but वक्त के साथ और उम्र के साथ खो गया है. किधर तेरा भी खो गया है, मेरे को मालूम है. तेरा भी खो गया है भाई. तू भी जा राइड पे, ट्रैवल कर, बस पकड़. तेरे को अगर मेरी एंग्जाइटी वाली वीडियो याद है तो मैंने क्या बोला था, याद है तेरे को? मैंने कहा था निकल भाई, दुनिया बहुत बड़ी है, द वर्ल्ड इज वेटिंग, निकल जा. तू अभी नहीं करेगा तो तू कभी नहीं कर पाएगा. सो या, आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस सोलो जर्नी. इट्स गोइंग टू बी अराउंड 3,500 kilometers to and fro solo. I'm extremely excited about it. One of the things I'm most excited about is food. There are obviously going to be different cultures, different languages, different people. अपन इंडिया में वैसे भी हर 100 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, हर 100 किलोमीटर पे कल्चर बदल जाता है, हर 50 किलोमीटर में बोलने का डायलेक्ट बदल जाता है भाई, हर 10-15 किलोमीटर में चाय का टेस्ट बदल जाता है. ऐसी डाइवर्सिटी तेरे को दुनिया में किधर मिलेगी? तेरे को किधर नहीं मिलेगी. पर
इतना सब होने के बावजूद आज अपने जो लीडर्स है वो खोखला कर रहे हैं अपने देश को अंदर से, ठीक है. दैट्स अ कॉन्वर्सेशन फॉर ए डिफरेंट वीडियो ऑल टुगेदर. So yeah, I'm very excited. I'm excited to meet people of different faiths, people of different cultures, people of different religions, different food. And I'm also very much excited for taking Dora to the mountains for the first time in her life. I don't know how she's going to react. अभी Instagram propaganda, Facebook propaganda, YouTube propaganda को अगर believe करे तो मेरी हिमालयन बहुत टाइम पहले breakdown हो जानी चाहिए थी. पर तो if you take care of her, she will take care of you. If you disrespect her, she will disrespect you. If she disrespects you, you will disrespect her. Life is a tandem, you know. ताली कभी भी दो हाथ से बजती है, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती. मैं बहुत ट्राई किया एक हाथ से ताली बजने को, मैं हो ही नहीं रहा था. हवा मतलब एक हाथ से ताली बज ही नहीं रही थी. मैं क्या करूँ? I've been thinking for the longest time कि इसको मैं क्या नेम करूँ. What should I name this series? और even I'm also confused कि मेरे को डेली अपलोड करना है, हर राइड का हर लेग अपलोड करना है, मुंबई टू सो एंड सो, सो एंड सो टू सो एंड सो, सो एंड सो टू सो एंड सो, या मुंबई टू उत्तराखंड डायरेक्टली वन नाइस 45 minute 1 hour movie should I upload? I'm extremely confused about that. I'm very interested in making a proper 1 hour travel movie, motorcycle travel movie, not the other travel movies that you see. But I'm very confused. So for months and months and months I was damn excited about this rider. Then suddenly I started hearing news के राजस्थान में floods है and Delhi's flooding and stuff like that. In fact मैंने कभी सोचा नहीं था कि वाओ क्या क्रिंज मोटोलॉग टाइटल है. सोचा नहीं था बारिश मिल जाएगी, सोचा नहीं था अकेले राइड पे निकलते ही ये हो जाएगा, सोचा नहीं था राइड के पहले दिन ही कांड हो जाएगा, सोचा अबे वही तो तकलीफ है भाई, तू सोच नहीं रहा है. सोचा नहीं था, सोचा तो सोच नहीं रहा है, वही तकलीफ है. जोक्स असाइड, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने कभी सोचा नहीं था कि राजस्थान में फ्लड वार्निंग्स के साइंस देखूंगा मैं. गूगल मैप पे रूट डालने के टाइम पे ईस्टर्न राजस्थान फ्लड्स में अफेक्ट योर रूट आया. एंड आई थॉट मेरे को लगा गूगल मैप्स मेरे को प्रैंक कर रहा है. यूजुअली जैसे वो रत्नागिरी के टाइम पे भी मेरे को प्रैंक किया था उसने, घुमा फिरा के फिर वही हाईवे पे आकर छोड़ दिया था गूगल मैप्स फैन के. हाँ, तो थैंक्स टू दीज रेन वार्निंग्स एंड फ्लड वार्निंग्स आई एम नॉट गोइंग फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान एंड चंडीगढ़ एंड ऑल दैट. आई एम गोइंग टू बी टेकिंग सेंट्रल इंडिया साइड ऑफ रूट. आई एम गोइंग टू बी गोइंग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड देन उत्तराखंड. सो मेरा अभी के लिए तो मेरा प्लान ये है कि 1 day 2 days 3rd day को तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँ. Another thing that's exciting is that Uttarakhand is I think one of the youngest states, one of the काफ़ी new states formation के हिसाब से. तो I'm quite excited to like experience the culture there, experience the food there. Like I said, food भाई मेरे को खाने से मतलब है और मेरे को राइड करने से मतलब है. My travel motor vlogs are called the road show, so I guess welcome to the first legit episode of Captain Escapes Road Show. This is where we spend our life on the road. I think there is no, I personally, my opinion, ठीक है, मेरा opinion ये है कि there is no other better way than to spend your life than on the highways and on the ghats. And it's a long shot, but I think we'll get there someday. Where I spend my entire life just on the tarmac. ये एक जगह पे रहना, एक रूफ के अंदर रहे, मेरे से नहीं होगा. पहले भी नहीं होता था, आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा, तरसों भी नहीं होगा, नरसों भी नहीं होगा, चरसों भी नहीं होगा. मतलब चरस तो मैं भुगता भी नहीं हूँ, बट चरसों होगा भी नहीं. या सो आई विल नीड अ लिटिल बिट हेल्प फ्रॉम सम ऑफ यू. अगर कोई मध्य प्रदेश से मेरे को देख रहा है या कोई यूपी से मेरे को देख रहा है तो प्लीज़ हाईवे पे सेफ होटल्स विद गुड पार्किंग कहाँ है प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता दीजिए. मैं उसके हिसाब से अपना स्टेज प्लान करूँगा. एंड लाइक आई सेड 500 किलोमीटर्स 550 किलोमीटर्स पर डे, नॉट मोर देन दैट. अंधेरे में मैं वैसे भी चलाता नहीं हूँ. फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, मैं थोड़ा सा कलर ब्लाइंड बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा नाइट ब्लाइंड हूँ. अंधेरे में मेरे को देखने में बहुत तकलीफ होती है. एंड माई आइज आर क्वाइट सेंसिटिव इन द डे टाइम. तो मेरे को ये मजबूरन येलो चश्मा
कभी कभार पहनना पड़ता है जब बाहर बहुत ब्राइट होता है। तो फाइनल लेग ऑफ द प्रेप वाज डोरा का सर्विस जो कल हो चुका है एंड शी हैज हैड अ वेरी मेजर सर्विस। 4,500 रुपये का बिल फटा है मेरा सर्विस का डोरा का। बाप रे बाप, ड्रम के रबर्स चेंज हुए, ब्रेक पैड्स चेंज हुए, पीछे का डिस्क मेरा चेंज हुआ है क्योंकि पीछे का डिस्क डैमेज हो चुका था। Everything else has been oiled up, greased up, handlebar का position has been changed just a tad bit। मेरा मोबाइल जो माउंट है वो थोड़ा सा टूट गया तो वो मेरे को आज जाके रिपेयर कराने का है। ट्यूब्स मैंने दोनों बदल दिए हैं। ट्यूब्स में 2 एक्स्ट्रा कैरी कर रहा हूँ अलग से। क्लच वायर एक एक्स्ट्रा कैरी कर रहा हूँ। एक ऑलरेडी क्लच वायर कल बदल चुका है, एक एक्स्ट्रा क्लच वायर मेरे को कैरी करना है। और क्या क्या बदला है, हेडलाइट का उसका लैंप बदला हुआ है, पीछे का टेल लाइट बदला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। मेरा टेल लाइट का जो असेंबली है पीछे का ऊपर का पूरा ख़राब हो चुका था, इसलिए उसमें 2 लाइट गायब हो गए थे। और मैंने मुन्ना भाई को कहा था रहने दो, मेरे को ऐसा ही अच्छा लग रहा है, जैसे वो ऐसा टूटे दांत वाला स्माइल होता ना, ऐसा अच्छा लग, जेन्युइनली मेरे को अच्छा लगता है। मुन्ना भाई ने बोला तो देख थोड़ा सा अपना ये टैगरी ना कम कर, उसको बदलने तो वो लाइट बंद हो जाएगा ना, हाईवे पे कुछ नहीं दिखने वाला भाई। और काफ़ी दिनों से मैं थोड़ा सा मेरा होमवर्क भी कर रहा हूँ। चेन अगर टूट जाए तो क्या करना है, पंक्चर हो जाए तो क्या करना है, ब्रेक खराब हो जाए तो क्या करना है, चेन टाइट कैसे करना है, चेन थोड़ी सी लूज़ कैसे करनी है, XYZ। क्योंकि तुमने, मैं एक बात बताता हूँ, तुमने लाइफ में कितनी भी राइड की होगी, ठीक है, कितने भी लोगों के साथ की होगी, जब तू पहली बार अकेले क्रॉस कंट्री करेगा ना, तभी जो नर्वसनेस रहेगी, एक फियर रहता है, एक नर्वसनेस रहता है, it's a different level. You can't compare it unless that bike starts and you are on the road. You will not be able to get over that fear. So you have to go. You just have to. मेरा मोटो क्या है लाइफ में याद है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मेरा मोटो ये है कि तू बैंडेड को जितना भी धीरे निकालेगा उतना ज़्यादा पेन होगा। बैंडेड को एक झटके में निकाल, चुभेगा लेकिन पेन कम होगा। दिस वॉज जस्ट एन अपडेट इश सॉर्ट ऑफ वीडियो। आई थिंक मेरे को ऑल्सो हैव इट्स कम टू माई नोटिस से मेरे लास्ट 2-3 वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस बाहर गए नहीं हैं। तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू आर गेटिंग माई नोटिफिकेशंस और नॉट, बिकॉज आई विल नॉट कम टू नो। मेरे को एज अ क्रिएटर मेरे को नहीं मालूम पड़ेगा कि मेरे नोटिफिकेशंस तेरे तक पहुंच रहे कि नहीं। स्टेटिस्टिक्स में भी जो आता है, बट अरे ग्राउंड लेवल पे मेरे को नहीं पता चलता है ना। तो प्लीज़ लेट मी नो समहाउ और दी अदर कि आपको मेरे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और अगर आ रहे हैं तो वाई आर यू नॉट वॉचिंग, प्लीज लेट मी नो। एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग? प्लीज लव मी प्लीज। ओके, दिस इज द लास्ट अपलोड बिफोर आई लीव फॉर माई राइड। द नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी डायरेक्टली माई टूर एंड yeah, thank you for watching. Thank you for flying Escape Airlines. This is your captain speaking and I will see you on my next flight. नोटिफिकेशन के बाद जो में घंटा आता है ना, वो घंटा दबा के रखने का, उसको प्रेस कर और उस पर ऑल जा, नहीं तो मेरे अपडेट्स आएंगे नहीं, ठीक है? ओके, 2 जगह लाइफ में खाली घंटा दबाने का, 3 जगह, किसी के घर पे, मंदिर में और यूट्यूब पे।